Good morning, students. Again, welcome in the chapter of how do organisms reproduce. The students, in previous lecture, we have talked about female reproductive system and what happens when egg is not fertilized. हमने बात किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इनके किन पार्ट्स का क्या पर्टिकुलर रोल होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसके साथ साथ हमने ये भी बात किया कि अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा एग प्रोड्यूस किया जाता है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, इन सारी बातों पे हमने डिस्कस किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ we must concern about that. During sexual reproduction or sexual act, in previous lecture we have seen that diseases can spread through many ways, okay, and while having sex it is the intimate connection of two bodies, okay, so it is not surprising that many of diseases can spread through the sexual act or sexual reproduction, okay. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं. ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. यस, आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था, पढ़ा हुआ था कि मेनी ऑफ डिजीजेस कैन बी स्प्रेड बाय मेनी ऑफ वेज, कई तरीके से जा सकती हैं. उसमें से एक वे जो है वो सेक्सुअल एक्ट के द्वारा भी है. एंड द डिजीजेस विच ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल एक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है इसको हम शॉर्ट में एसटीडी के नाम से भी जानते हैं. STDs. Yes, STDs, sexually transmitted diseases. Now, if we talk about the sexually transmitted diseases, then we find that STDs may be of two types, either by the bacterial infection or by the viral infection. If we talk about bacterial infection, then we find that the bacterial infection during the sexual act or sex may be gonorrhea, syphilis, etc. These are the sexually transmitted disease which may be by the bacterial infection. और मैंने बताया कि ये sexually transmitted disease वायरल भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो then we find that वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमको वार्ड्स एक डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है. एंड सिमिलरली वेरी फेमस HIV, एड्स. ओके, नाउ दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. HIV बहुत ही फेमस डिजीज है, आप जानते हैं वायरल इन्फेक्शन. HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ओके स्टूडेंट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ओके, तो ये कैसा होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट इज दीज STDs कैन प्रिवेंट. यस, दीज STDs, sexually transmitted diseases, can prevent by the use of condom on penis during the sex, during the sexual intercourse. Okay, or similar wearing
used on vagina during the sexual intercourse. These methods can prevent from the sexually transmitted disease. Students, now we know that during the sexual act it is a greater possibility for the pregnancy. It has greater potential to lead pregnancy, and pregnancy demand major responsibility and need for the woman's body and their mind. If she is not ready for pregnancy, then her health may be adversely affected. मैंने बताया कि क्या होता है, मेजर डिमांड होती है जिससे उसकी हेल्थ क्या हो सकती है, वो अफेक्ट हो सकती है. नाउ दिस प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइड बाय सेवरल मेथड्स and these methods are known as contraceptive methods. Students, इस मेथड को contraceptive methods के नाम से जाना जाता है. The methods that are used to prevent from the pregnancy, that is known as contraceptive methods. Now these contraceptive methods are of different types. If we talk about contraceptive methods, then we find that first contraceptive method is barrier method. Barrier method is a method to prevent the pregnancy in which mechanical barriers are produced between the sperm and ova so that they may not encounter to each other. जब उनका एनकाउंटर नहीं करेंगे, उनके साथ फ्यूजन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ऐसा मेथड बैरियर मेथड कहलाता है. इन दिस मेथड कॉन्डोम्स, ओके, फीमेल कॉन्डोम्स एंड सिमिलर वियरिंग आर यूज्ड टू प्रिवेंट द by the barrier method to prevent the pregnancy. Same as copper T, एक डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, copper T, that is used, copper T जो इंग्लिश लेटर T की तरह से होता है, that is used for prevention of the pregnancy and it is fitted in uterus. तो copper T यूट्रस के अंदर यूज किया जाता है. इसी के साथ साथ लूप भी यूज किया जाता है, लूप, ओके. तो ये भी बैरियर मेथड के अंदर आते हैं और इनके यूज से क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है. ये यूट्रस के अंदर पेन और इरिटेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी चीजें जो है आपके क्या है, वो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं. स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड अगर हम बात करते हैं, सेकेंड मेथड, दैट इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होते हैं, मेडिसिन्स और ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी एंड दीज ड्रग्स आर टेकन एज ओरली इन द फॉर्म ऑफ पिल्स के फॉर्म में. ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे आपको दिखाया गया स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं. ये ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है जो क्या होते हैं, केमिकल बैरियर के रूप में यूज होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, हार्मोनल चेंज करते हैं जिसकी वजह से एक का जो प्रोडक्शन होता है, एक का रिलीजन होता है, एक टाइमली रिलीज नहीं होता जिससे फ्यूजन नहीं होता है. तो ये इसमें हार्मोन की वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्या है, साइड इफेक्ट है. ओके स्टूडेंट, ये भी एक क्या है, साइड इफेक्ट रखता है. नाउ थर्ड मेथड इज, अगर हम थर्ड मेथड की बात करते हैं तो देन वी फाइंड दैट द थर्ड मेथड इज, that is surgical method. Surgical method. Student, in this method a surgery is used to avoid the pregnancy. इसमें क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सर्जरी की जाती है. और ये सर्जरी कहां पर होती है, मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर. स्टूडेंट्स, मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है एंड दिस इज नोन एज, क्या कहलाता है, वैजेक्टोमी. अगर हम बात करें तो इसको क्या नाम दिया जाता है, वैजेक्टोमी. यस, वैजेक्टोमी. सेम एज फीमेल्स के अंदर जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके सर्जरी के द्वारा उसको ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एग क्या होता है, वो यूट्रस तक नहीं आ पाता है या स्पर्म ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाते, एग तक नहीं पहुंच पाते. तो ये मेथड कहलाता है
यहाँ पर आपने देखा वेजेक्टोमी इसको कहते हैं, और फीमेल के अंदर जब कट करते हैं ओविडक्ट को तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं? ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी नाम देते हैं। बट इट आल्सो हैव नेगेटिव पॉइंट्स, लाइक अगर सर्जरी को सेफली नहीं किया गया तो इससे भी क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बट इट इज अ गुड वे टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, लेकिन याद रहे कि इससे जो है इन्फेक्शन हो जाता है। एंड सिमिलर दीज आर द डिफरेंट मेथड्स, IUD, वेजाइनल रिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। तो इन सारे मेथड्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। स्टूडेंट, सर्जिकल मेथड इज आल्सो यूज टू अवॉइड unwanted pregnancy in the form of abortion, but this is misused by the peoples. इसको क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा मिसयूज किया जाता है by those people who do not want a particular sex child and they misuse in the female foeticides. क्या होते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड के रूप में इसका मिसयूज करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको पता है किसी भी हेल्दी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सेक्स रेशियो आप जानते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक हेल्दी सेक्स रेशियो का होना बहुत ही जरूरी है, और हेल्दी सेक्स रेशियो जो होता है दैट इज डिटरमिन्ड, द पॉपुलेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी इज डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ डेथ एंड रेट ऑफ बर्थ। So students, these are the points on which we have to talk and we have to concern about these during sexual act. Okay? आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। यहीं पर ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ओके, और इन क्वेश्चन से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Here are 6 questions related to the reproductive health. If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? Second, what could be the reason for adopting contraceptive methods? तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वन, how does reproduction help in providing a stability to population of species? Fourth question is, what are various ways to avoid pregnancy? अभी मैंने बात किया, elaborate any 2 methods, 2 मेथड के बारे में आपको बताना है। Fifth question is, describe sexually transmitted diseases and mention the ways to prevent them. And last but not least, students, अच्छा क्वेश्चन है, surgical methods can be used to create a block in the reproductive system for contraceptive purposes. Name such part where blocks are created in males. अभी मैंने बात किया क्या कट कर दिया जाता है, एंड फीमेल्स में क्या कट। आई होप स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।